जमा नहीं हो रहा है, वो CFMS अकाउंट जो है उसमें डाल रहा है, उससे वो लोग बिना हमको बता के वो डाइवर्ट कर रहा है। तो हम लोग को चेक पावर है, तो आर्टिकल 73-74 अमेंडमेंट का चेक पावर है, फिर भी वो लोग लूट रहा है funds, but they are not releasing the funds. They are directly taking from us the funds to the state government, and without of our knowledge and without of our signature and without of Gram Sabha Tirman. How it is possible? That's the state government is behaving like that. That's why we protested. Namaskar, here you are watching Mini Sansad. We know there are three type of system in democracy, three types of the government in democracy. One is central government, second is state government, and third one is the local government. These people come from the Andhra Pradesh, all are sarpanch. The local government is the main fundamental body of the democracy, and now they accusing to the state government that the fund provided by the central government has been grabbed by the state government. They all are from the different part of the Andhra Pradesh, come to Delhi and protest. Ma'am, what is your name? Why? Myself Lakshmi Mutyal Rao Vanapalli. I am the Sarpanch of Gambiram Panchayat, and I am from Andhra Pradesh, and also I am the State Sarpanch Association President. From Andhra Pradesh we came here too because in Andhra Pradesh we are facing all the sarpanches and all the parties of the sarpanches are facing a lot of problems in our Andhra Pradesh because of the lacks of deficiency of funds. The state government is not releasing any funds for our panchayats, and also what are the central government is releasing the funds to us to our panchayats. Those funds also have been stolen by the state government for their different programs. There are some state commission for the fund allocation in Andhra Pradesh, just like a Delhi have a Delhi. वो भी नहीं डाला. Like Delhi is there in funds, but they are not releasing the funds. They are directly taking from us the funds to the state government, and without of our knowledge and without of our signature and without of Gram Sabha Tirman. How it is possible? That's the state government is behaving like that. That's why we protested there, and we started a questioning about the state government, but they are not given any answer for us. Fund is directly not come to your sarpanch accounts or sarpanch body account. The funds are coming for the sarpanch account, but without our knowledge, they are taking all of our funds. Okay. Without our knowledge and without a signature from the banks. Without your concern. Without our concern. Jagan Mohan Reddy always says that they are good governing Andhra Pradesh. They are developing the Andhra Pradesh. No, it's also false. It's all the false. There is no development in our state, and there is no development in our villages. We can't provide minimum facilities for our villages, minimum needs for the villages like sanitation or lightning or bleaching. This is the rainy season. No, we can't keep bleaching on the roads also. There is no small activities you can't do. Minimum small base scale needs we can't provide without funds. How can we do? The local government is the backbone of the democracy. People say that, and there is a lack of fund. Is there any taxes that can be raised by your? Those funds also not given to the panchayats. All the funds are taking away the state government. Any funds is not given to the panchayats. They are insulting the panchayats, and they are not giving any funds. State government holding your funds, or they are stealing funds. Okay. Not holding, they are stealing. All of the funds are stealing. What kind of funds you got from the central government? 14-15 finance for the rural development, the central government releasing those funds also, and Narega funds also, and Jal Jeevan missions also. All the funds, all of the funds have been taken by the state government. How many sarpanch are in the in Andhra Pradesh? Total 13,000 sarpanches are there. 13,000 sarpanches are there, but every sarpanch is facing the same situation. Even also the YCP government sarpanches also facing the same situation, and even also the YCP sarpanches came here to do the dharna. देखिए कितने गंभीर हालात हैं ये जो बता रही हैं मैडम, जिन्होंने अंग्रेजी में अभी बताया कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ग्रैब कर रही है, और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि स्टोलन यानी चोरी कर लिया गया फंड, वो फंड जो केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत या केंद्र से जो सरपंच को मिलना था वो फंड
स्टेट गवर्नमेंट ने, मैंने तो कहा कि होल्ड कर लिया, क्या रोक लिया है, तो इन्होंने साफ साफ कहा रोका नहीं गया है, चोरी कर लिया गया। इन्होंने ये भी कहा कि छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में दिक्कत आ रही है, मानसून का सीजन है, अगर मच्छर हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा भी अगर हम कुछ करना चाहें तो सरपंच नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में सरपंच का अहम रोल होता है अपने गांव को, अपनी जगह को सुरक्षित करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, लेकिन उनके अधिकार जब फंड ही नहीं होगा तो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये बहुत बात है। आइए हम और बात करते हैं। सर, ये जो इतनी समस्या हैं, 13,000 के करीब में हमने बताया कि सरपंच हैं अलग अलग आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी लगभग 13,000 गांव तो होंगे ही, ज़्यादा या कम, तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है और रूरल एरिया है सारा। मेरा नाम गोंडू शंकर है, मैं श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आंध्र प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। अभी हम लोग 12,918 सरपंच से है अपना गांव में। 5 करोड़ का जो पॉपुलेशन में 3.5 करोड़ गांव में ही रहता है। तो अभी हम लोग का मतलब आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो रूरल एरिया में नहीं, 2/3 हम लोग गांव में ही निवास करता है। 3.5 करोड़ लोग इधर ही रहता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी 150 लोग आए हैं यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश से आया, हम लोग का इतना बुरी हालत है। जो 14-15 वित्त आयोग का जो पैसा आया है वो पूरा आंध्र प्रदेश राज्य गवर्नमेंट में पूरा लूट लिया है। तो केंद्र सरकार ने जो भी पैसा दे रहा है, अभी लाखों पैसा दे रहा है पूरा देश में पंचायती का चमकने के लिए, कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन अपना आंध्रा में इवन जम्मू कश्मीर की बात करें हम, बहुत जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है और वो लोग अच्छा विकास कर रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन अगर करना है और पैसे का सही से वितरण करना है तो ग्राम पंचायत तक पैसा पहुंचना चाहिए। PFMS अकाउंट खोला है, लेकिन वो अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा है। वो CFMS अकाउंट जो है उसमें डाल रहा है, उससे वो लोग बिना हमको बता के वो डाइवर्ट कर रहा है। तो हम लोग को चेक पावर है, तो आर्टिकल 73-74 अमेंडमेंट का चेक पावर है, फिर भी वो लोग लूट रहा है पूरा। आपने इसके लिए क्या कोई शिकायत की केंद्र सरकार से, या केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई कोर्ट में हम लोग कोर्ट में केस किया है, वहाँ पे पंचायती राज कमिश्नर को, स्टेट गवर्नमेंट में पंचायती राज मिनिस्टर को, उधर कलेक्टर्स को और चीफ मिनिस्टर को, सबको हम लोग ये लेटर्स देने से भी कोई हमको आंसर नहीं मिल रहा था। इसलिए हम दिल्ली पे आना पड़ा है। इसलिए कि दिल्ली में अभी वो केंद्र मंत्री जी, वो गिरिराज सिंह जी है, पंचायती राज मिनिस्ट्री को भी हम लोग कल मिला है, और निर्मला सीतारामन जी को मिला है, और कपिल जी को मिला। सबको मिलके हम लोग का जो ये डाइवर्ट किया गया है, और 22, 23 एंड 23-24 का भी 4,050 करोड़ है, वो भी पूरा डाइवर्ट। हर साल के लिए जो वित्त आयोग देता है फंड, वो कितना लगभग होता है? वो हम लोग का लगभग 1,500 करोड़ होता है। ऐसा 1,500 या 3,000 भी होता है आजकल, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर भी पूरा पैसा बिना हमको पता के लूट रहा है। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो आयोग है, वो भी नहीं डाला आज तक। उसका पैसा वो लोकल टैक्स में हम लोग को जो आने का है वो भी पैसा नहीं आता है। लोकल टैक्स भी नहीं मिल रहा है। जो पैसा है वो फ्रीजिंग बोलता है। तो हम लोग को बिजली का रूप में बिना हमको बता के लाखों रुपए लेता है बिजली का चार्जेस बोल के। एक चीज तो बताइए, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी खरीदने का नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, तो क्लीनिंग करने का, सैनिटेशन करने के लिए नहीं है। बहुत हालत खराब है हम लोग का। तो ये क्या हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स है क्या, कुछ ऐसा इस वजह से हो रहा है? ऐसा बोल के ऐसा भी नहीं है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पंचायती, अभी जो गवर्नमेंट है 80%, मोर देन 80% लोकल बॉडी उनका चुनाव, उनका आदमी लोग ही है। अभी यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट का सरपंच लोग भी आया है। YCP, TDP, BJP, जनसेना, CPI, सबका आया हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि किस तरीके से अधिकार मारा जाता है, किस तरीके से इस देश के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स तो नहीं कहूँगा मैं, जो आपके संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार हैं, जो सरपंचों को जो अधिकार थे वो मार लिए गए बड़ी गवर्नमेंट के जरिए। अक्सर ये तो सुना जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करती है अपनी पावर का और स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म कर देती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये पहला मामला हमें देखने को मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है,
उनको रोक रही हैं और उनको फंड रोक रही हैं, बहुत ही बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि ये बात अगर गलत हो रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राज, जय हिंद, जय भारत।